Good afternoon, friends. I think in last lecture we concluded with purchase journal, sales journal, purchase return, sales return, bills receivable, and bills payable. So these are the records maintained for non-cash transactions. The last one is pending in non-cash transaction, and that is journal proper. But before we start with journal proper, a quick revision of what we discussed till now. We understood the evolution of accounting. We spoke about the milestone of double entry bookkeeping system, which is first time introduced by Fra Lucasa di Pacioli, who is known as father of double entry bookkeeping system. AICPA, that is American Institute of Certified Public Accountants, has defined accounting as an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and events in a systematic manner. We understood what is recording. Recording is recording of business transactions in journal. Classifying is posting the journal entries into ledger. When you post the journal entries into ledger, what you do is you classify those transactions into different types of accounts like personal account, real account, nominal account. Then summarizing is preparation of trial balance based on your closing ledger balances, and then by taking base of trial balance we interpret our business in the form of financial statements. In financial statements we prepare profitability statement, what you call as trading and P&L account, and we draw a balance sheet. Trading and P&L account will give you financial performance of the business, whereas balance sheet will give you financial position. So you interpret your business transactions, you interpret your effectiveness, efficiency of the business in the form of financial statements. Financial statements are interpreted under various different branches of accounting by various users of financial statements. Users of financial statements include internal users and external users. इंटरनल यूजर्स में हम लोगों ने बात की थी, शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल यूजर्स में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, then creditors, providers of finance, you can say lenders, and very important competitors. We talked about competitors also. What are the branches of accounting which we discussed? See, the subject which we are studying is financial accounting, but other than financial accounting we have four other branches also. Those are cost accounting, management accounting, social responsibility accounting, and human resource accounting. After understanding this, we talked about the primary records which are maintained for recording the business transactions. The primary records are understood in two ways: primary records for cash transactions and primary records for non-cash transactions. For cash transactions, we have cash book. In cash book, we have different formats suitable according to the nature of business, volume of business. We have single column cash book, double column cash book, three or multi-column cash book, and then we have petty cash book. Then we understood all of this. For non-cash transactions we have journals. In journals, purchase journal, sales journal, purchase return journal, sales return journal, bills receivable journal, bills payable journal, and then journal proper. So I think we are done with bills payable journal up to bills payable journal, and now we have to study journal proper. We will be understanding that, we will write also, but before that tell me, नॉन कैश ट्रांजेक्शन सारे कवर हो जाते हैं क्या अभी तक जो रिकॉर्ड डिस्कस किए उसमें? नहीं, कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है जो पहले के जर्नल्स में कवर नहीं होते. जैसे परचेज जर्नल ओनली रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स. गुड्स अगर क्रेडिट पे परचेस हुए तो वो परचेज जर्नल में जाएंगे. गुड्स का अगर सेल हो रहा है क्रेडिट पे तो वो सेल्स जर्नल में जाता है. अगर परचेस रिटर्न है तो उसके लिए रिटर्न आउटवर्ड जर्नल है. अगर सेल्स रिटर्न है तो उसके लिए रिटर्न इनवर्ड जर्नल है. अगर बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुए तो वो डिटेल्स हम रिकॉर्ड करते हैं बिल्स रिसीवेबल जर्नल में. और अगर बिल्स पेएबल एक्सेप्ट हुए तो बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड आर रिकॉर्डेड इन बिल्स पेएबल जर्नल. बट सिर्फ इतने ही नॉन कैश ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं ना, और भी तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है. तो बाकी के फिर बचे हुए नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक रेसिड्यूअरी जर्नल बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर. सच्ची बोलना तो जर्नल प्रॉपर वैसे रेसिड्यूअरी है, रेसिड्यूअरी मतलब बचे हुए ट्रांजेक्शंस के लिए है वो,
और अपन तो सीखते हो 11th स्टैंडर्ड से यही सीखते हैं कि सारे जर्नल एंट्रीज हम उसी फॉर्मेट में करते हैं जर्नल प्रॉपर में आज तक। जिस बिजनेस में ये बाकी के जर्नल मेंटेन नहीं होते, कौन से ये अभी तक डिस्कस किए हुए, परचेज जर्नल, सेल जर्नल, ये सारे, तो फिर सारे एंट्रीज कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में करेंगे। अगर ये सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो रहे तो फिर ये सारे के सारे एंट्रीज हम कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। तो अपने को 11 से तो जर्नल एंट्रीज जो सिखाए वो तो जर्नल प्रॉपर के फॉर्मेट में सिखाए हुए, राइट। हाँ, लेकिन जहाँ इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो अभी तक मैंने डिस्कस किए, लिखा के दिए, ये अगर मेंटेन हो रहे, फिर अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन जो है उस बेसिस पे एंट्रीज वो जर्नल, अलग अलग जर्नल्स में होंगे, और जिसके लिए कोई सेपरेट रिकॉर्ड है नहीं उसके लिए जर्नल प्रॉपर में एंट्री की जाएगी। लिखो, हेडिंग लिखो, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। फीचर्स। फीचर्स। नंबर 1, it is residuary record, residuary, it is residuary record for non-cash transactions. It is residuary record for non-cash transactions. Number 2, it records it records all those non-cash transactions, all those non-cash transactions which cannot be recorded, which cannot be recorded in any of the in any of the above discussed journals, in any of the above discussed journals. Number 3, examples of such transactions are, examples of such transactions are next line, A, depreciation on fixed asset. Number 2, write off of bad debts, write off, WRITEOFF, write off of, again of, OF, write off of bad dates, bad dates, DEBTS, dates.
Number 3, dishonor of bills receivable, dishonor of bills receivable, etc. Dishonor of bills receivable, etc. Last, serial number 4. The format of journal proper is as under. Date particulars LF, debit rupees, credit rupees. इट इज़ जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी, बट जब आप इतने बेसिक में जाके ये चीज़ें सीख रहे हैं तो 2-3 एंट्रीज लिख भी लेते हैं जर्नल में. जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, ईयर एंडिंग डेट पे हम एंट्री करते हैं यूजुअली. लेट्स से 31st March 2024, ईयर एंडिंग डेट. कोई भी डेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन से. व्हाट एंट्री डू वी पास फॉर डेप्रिसिएशन? क्या करते हैं हम डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स क्या देते हैं, याद करो. वो P&L को ट्रांसफर की एंट्री हो गई, बट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते वक्त क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. इट विल बी लॉस फॉर अस. अपने लिए तो लॉस है ना, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होना. तो अगर लॉस है तो लॉस इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट व्हाट इज द रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड एंड फिक्स्ड एसेट विल बी क्रेडिटेड. फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है. फिक्स्ड एसेट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है. अगर वो वैल्यू कम करनी है तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा. तो एंट्री क्या पास होगी? depreciation account debit to fixed asset account. So how do we write that in journal proper? Depreciation account debit. Let's say the amount is 10,000 rupees. Just एक example के लिए लिख रहा हूँ. 2 fixed asset account 10,000. So both the accounts are written in journal proper, the account to be debited and the account to be credited, and below that we write a brief narration of that transaction. वो जो भी ट्रांजेक्शन आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया है उसका छोटा सा ब्रीफ में नरेशन देते हैं हम लोग कि क्या है वो ट्रांजेक्शन. सो बीइंग
depreciation charged on fixed asset. बैड डेट्स की क्या एंट्री करते हैं हम लोग? व्हाट एंट्री डू वी पास फॉर बैड डेट्स? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर से उतना पैसा कम मिलने वाला है, लॉस हो चुका है। बैड डेट्स का मतलब पैसा आना था जो अब नहीं आने वाला है, तो अपने लिए वो लॉस हो गया। तो बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डेटर्स अकाउंट विल बी credited. The entry will be, let's say, 31st March 24, bad dates account debit to debtors account. Any amount you can write, for example purpose 2000. Being bad dates are recorded in the books. Yes. So like this we pass the entries in journal proper. लिखा? Yes. मैं वापस रिपीट करता हूँ, अपने को 11th स्टैंडर्ड से बेटा इसी फॉर्मेट में सारे एंट्री सिखाए गए। हमने जर्नल के कई सारे प्रॉब्लम 11th में सॉल्व किए रहेंगे, तो सारे के सारे हमने इसी फॉर्मेट में सॉल्व किए। तो अगर बाकी के जो सब्सिडियरी बुक्स बोल के आपने सीखी है, जर्नल, परचेज जर्नल, सेल जर्नल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये अगर मेंटेन हो रहे तो एंट्री उसमें होगी जैसे अभी तक मैंने सिखाया तुमको। लेकिन अगर वो मेंटेन ही नहीं हो रहे मेरे बिजनेस में, समझो, फिर उस केस में सारे के सारे एंट्रीज हम कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में करेंगे। तो अपने को सिखाते हो सारे इसी फॉर्मेट में सिखाए हुए हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर अब आप कुछ अलग कुछ बोल रहे हो क्या। बिल्कुल भी अलग नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर सब्सिडरी बुक्स मेंटेन नहीं हो रहे तो पूरे के पूरे एंट्रीज में जर्नल प्रॉपर नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर सब्सिडरी बुक्स मेंटेन हो रहे तो फिर जर्नल प्रॉपर में सारे एंट्रीज आएंगे क्या? नहीं आएंगे। फिर जिस जहां की वहां जाएगी ना एंट्री। अभी क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, वेयर विल यू रिकॉर्ड? परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, परचेज जर्नल या परचेज डे बुक जिसको बोलते हैं। हाँ, अगर परचेज डे बुक में मेंटेन ही नहीं कर रहा हूं तो फिर कहाँ आएगा वो? फिर वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। झेपते जाते डोक्यात? नक्की? Yes. So with this we finish with the primary records for cash and non-cash transactions. For once again, for cash, cash book, which might be single column, double column, multi column, or petty cash book, and non-cash transactions are recorded in journals, and journals will include purchase journal, sales journal, purchase return journal, sales return journal, bills receivable journal, bills payable journal, journal proper. Any problem? Now write down the heading. Types of accounts. How many types of accounts you have studied? Somebody might say two, somebody might say three. Both the answers are right. दोनों आंसर कैसे सेम रहेंगे सर? या तो दो रहेंगे या तो तीन रहेंगे. How you categorize it depends on that. If primary categorization I do like this: personal,
एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में वापस दो टाइप्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट्स? पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या है? मीनिंग क्या होता है इसका? अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कंपनी का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। फर्म का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। आपका मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना ही है तो अपन एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं यहाँ। सुशील अकाउंट, आलिया अकाउंट, भंडारी बियानी एंड एसोसिएट्स अकाउंट। फर्म है एक, भंडारी बियानी एंड एसोसिएट्स, मेरी फर्म है। सो फर्म का अकाउंट ये भी एक पर्सनल अकाउंट होगा। ईपीएपीएल अकाउंट, ये कंपनी है, मेरी है, जहां पे आप अभी फिलहाल बैठे हुए हो। इट इज एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ईपीएपीएल अकाउंट, कंपनीज अकाउंट। एचडीएफसी बैंक अकाउंट, एचडीएफसी बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन है ना एचडीएफसी। और एक एग्जांपल लिखना है तो दगड़ू शेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट अकाउंट। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट अकाउंट। ये तो ट्रस्ट का अकाउंट है। भगवान के अकाउंट है, आप जानते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं हंसी मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। भगवान के अकाउंट है। तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? हम्म। टीटीडी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। हम्म। टीटीडी ने बालाजी भगवान के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन किया है, डीमैट अकाउंट। और भगवान के नाम पे शेयर्स है। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। मैं भी पहले शॉक था, बट डीमैट अकाउंट ओपन करके क्या वहां पे चढ़ा हुआ होता है ना, पैसा बहुत आता है ना। वहां पे काउंटिंग कभी रुकती ही नहीं है, अगर बाई चांस आप में से कोई गया हुआ है तो।
गए क्या तिरुपति बालाजी कभी? जो नहीं गए, कभी जाओगे तो आपको आंखों देखे देखने को मिलेगा मैं जो बोल रहा हूँ। बोल तो पहली जगह है जहाँ पैसा देने के लिए लाइन लगती है, पैसा देने के लिए, लेने के लिए नहीं। हुंडी बोलते, वो हुंडी जहाँ पे अपन अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं और लोगों की बहुत श्रद्धा है उसके ऊपर, भगवान के ऊपर। तो जाते ही वहाँ पैसे चढ़ाए जाते हैं, लाइन लगती पैसे चढ़ाने को। और हुंडी इतना पैसा जमा होता है कि 24 आवर्स वहाँ पे काउंटिंग है। 24 आवर्स। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा आता है, क्या कैश आ रहा है, सोना आता है, चांदी आता है, डायमंड्स आते हैं। तो आप गूगल पे सर्च करना बाद में चाहिए तो, इफ़ यू वांट। टीटीडी का, टीटीडी ने लॉर्ड वेंकटेश्वरा नाम से डीमैट अकाउंट ओपन किया है, और उस शेयर से भगवान के नाम पे, क्यों तो जो भक्त लोग हैं उन्होंने शेयर्स भी ट्रांसफर किए भगवान को। तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, भगवान का भी अकाउंट हो, इंडिविजुअल है ना भगवान भी तो अल्टीमेटली। सो पर्सनल अकाउंट्स। अभी पार्टनरशिप जब सिखाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। अभी तुमको बोलूंगा तो बोलेंगे सर अपने को येड़े भी निकाल रहे, कुछ भी फेंकते सर क्लास में। ऑन पेपर पार्टनरशिप में भगवान पार्टनर बनाए जाते हैं, ऑन पेपर, स्टैम्प पेपर पे बकायदा। मेरे क्लोज रिलेटिव है ब्लड रिलेशन में, उनका खुद का पार्टनरशिप है भगवान के साथ, लॉर्ड वेंकटेश्वरा। 10% पार्टनर है भगवान उसमें। तो साल भर में जो भी प्रॉफिट होता है, समझो जस्ट एक एग्जांपल के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ साल भर में, तो 10% बोले तो भगवान का 10% शेयर, वो तो 10 लाख रुपए हो गया। फिर वो भैया क्या करते हैं, वो 10 लाख में से 5 लाख रुपए आजू बाजू के छोटे गांव में किसी की शादी है जिसकी परिस्थिति नहीं है, तो उनको ये भगवान ने दिया है बोल के दे देते। मैंने दिया बोल के नहीं बोलते, वो बोलते मेरा पैसा ही नहीं है, भगवान का ही है। और बोल तो आधा ये ऐसे दान धर्म करते, और बचा हुआ जो आधा है, जैसे 10 लाख रुपए समझो भगवान के है, 5 लाख रुपए का दान धर्म होता है, 5 लाख रुपए जाके वो हुंडी में डालते वहां पे बालाजी के, ये आपका पैसा आपको बोल के। तो जब पहली बार उन्होंने मेरे को बोला तो मैं हंसा, मतलब कुछ भी बोलते रहे, ऐसे कहीं रहता है क्या। उन्होंने मेरे को बताया स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ, बोले ये देख तेरे को झूठ क्यों बोलूंगा मैं। बोले जब से भगवान को पार्टनर बनाया है, बरकत ही बरकत है बोले अपने को, कोई कमी नहीं है अपने को। हाँ। तो अभी अपने अपनी श्रद्धा का विषय है ये, मतलब इसके ऊपर डिबेट हो सकता है, चाहिए उतना। बट बता रहा हूँ आपको कि ये पर्सनल अकाउंट हो गया, भगवान के भी अकाउंट होते हैं। हाँ, खाटू श्याम में भी है, डीमैट अकाउंट है उनका भी। अच्छा, खाटू श्याम का तो नहीं सुना मैंने, ये वेंकटेश्वरा का तो सुना हुआ है। हाँ। हाँ चोर। वो अभी आप बहुत छोटे हो, आप कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो रही है। 4-5 साल पहले मुंबई में एक एक्साइज ऑफिसर को पकड़ा करप्शन के केस में। 6.5 करोड़ रुपए कैश मिली उसके घर में, 6.5 करोड़ कैश मिली। और उसने जब कन्फेशन दिया तो कन्फेशन में बोला था उसने कि बोले इसमें कि आधे तो मैं बालाजी को चढ़ाने वाला था। हाँ बोले 50% भगवान के साथ मेरी भागीदारी है, बोले पार्टनरशिप है। बोले तो करप्शन में भी भगवान को पार्टनर बना रहे यार। तो पाप करो न जाके आधा पैसा चढ़ा दिया तो क्या तुम्हारा बचा हुआ आधा पाप तुम्हारा एक माफ हो जाता है क्या? कुछ भी हो सकता है अपने पास। तो तू जो बोल रहा ना चोर भी बनाते पार्टनर, तो वो वैसा हिसाब है। अभी देखो ना, हर मंदिर में कितनी गर्दी बढ़ रही, उसका रीजन ही है ना कि चोरे मारे भी तो बढ़ रही है, पाप पाप बढ़ रहे दुनिया में बहुत। तो जाके भगवान के पास चढ़ावा करते, कुछ करते। एग्जाम के पहले आपको भी तो याद आती ना रे, अलग अलग रिजल्ट के पहले आती नहीं क्या याद, मेरे को बताओ। बाकी दिन जाओ मत जाओ, रिजल्ट के दिन मंदिर जाते हैं ना अपन। हाँ। एनीवे, उड़ीसा वाला तो किस्सा ही अलग है। बोल तो मैं तो देखा टीवी पे तो पागल हो गया। 351 करोड़ पे लॉक हुआ है वो फिगर। 351, 351 का रिपोर्ट है। मेरे सोसाइटी में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रहते हैं, उन्होंने ग्रुप पे डाला था मैसेज। तो 351, 353 जो भी है, कैश मिली है कैश। काउंटिंग को कितने लोग बैठे थे, तो कितने 4-5 दिन लग गए काउंटिंग को। कितने 20 लोग बैठे थे, बोले 6 मशीन थे, मशीन भी थक गई। हाँ मशीन खराब हो गई पैसा काउंट कर कर। अभी 353 करोड़ कैश। 2000 के नोट तो ऐसे पड़े हुए थे बोले, 2000 के नोट। हाँ, वो रेड पिक्चर देखने के बाद लगता था कि कुछ भी दिखाते हैं, साला ये तो सच्ची हो गया है ना। अजय देवगन का रेड पिक्चर देखा रहेगा ना।
कैसा सोना गिरता उसमें सीलिंग में से। मैं एक दिन वही सोच के तोड़ा था ये, कुछ मिल जाएगा अपने को। हाँ। हाँ। आरसीसी। तो लातूर का है क्या? फिर तेरे को कैसे मालूम आरसीसी? अच्छा तू नांदेड़ का है। ये बाकी बच्चों को आरसीसी या पुणे में इतना अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ है, आए आरसीसी अभी पुणे में। हाँ। आरसीसी लातूर के, लातूर पैटर्न सुना है ना तुमने? इट इज वेरी फेमस फॉर 11th एंड 12th, लातूर पैटर्न। बोल तो जैसे कोटा फैक्ट्री है, कोटा जेई और इसके लिए, वैसे लातूर बहुत बड़ा सेंटर है। अब मैं खुद नेटिव मेरा लातूर का है, मेरा घर वहाँ पे है, तो मैं जानता हूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या है। इतनी स्टूडेंट पॉपुलेशन हो गई है 11th 12th के लिए, तूफान, तूफान। तो हाँ, नीट के लिए, नीट के लिए। तो लातूर पैटर्न, मेरा घर भी प्रॉपर ट्यूशन एरिया में। तो वहाँ पे मैंने, मेरा पुराना बंगलो था, अब जाना होता नहीं बोल के वो गिरा के रीडेवलप किया। तो सारे फ्लैट तुरंत रेंट पे चले गए स्टूडेंट के फैमिलीज। तो मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं है, हिसाब ही नहीं। 11th 12th की फीस 2 लाख 3 लाख रुपए, एंड हजारों में स्टूडेंट्स है हर साल। वो एक क्लास जिसकी वो बात कर रहा है, एक क्लास में कुछ 7,500 स्टूडेंट्स है। 7,500 स्टूडेंट्स इंटू 2 लाख रुपए, कैलसी पे बैठेगा क्या? देखो, 2 लाख इंटू 7,500, एंड 2 लाख इंटू 7,500, और ये पूरा कैश में, ऑनलाइन अलग। हाँ। तो वो कंपैरिजन में अपनी बहुत कम है, बढ़ाना चाहिए क्यों? नहीं, बढ़ाना चाहिए ना रे, कम है ना फीस। रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स आर, real accounts are accounts of assets and properties. Few examples we can write: cash account, building account, कंप्यूटर, यस, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे आ गए उसमें। गुडविल अकाउंट, goodwill is also an asset, and it is a fixed asset, so it is real account. Patents account, trademark, ये सारे रियल अकाउंट्स हो गए। सो अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर रियल अकाउंट्स, एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर accounts of incomes and expenses. Accounts of incomes and expenses are nominal accounts. Salary account, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट दोनों भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। इफ इट इज इंटरेस्ट अलाउड तो इट इज एक्सपेंस, इफ इट इज इंटरेस्ट अर्नड इट इज इनकम। सिमिलरली कमीशन अकाउंट, कमीशन भी दोनों हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। और एक अकाउंट जो हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो था डिस्काउंट अकाउंट। इफ इट इज डिस्काउंट अलाउड इट इज expense, if it is discount earned income. Bad debts account, advertisement,
ऑल दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं. एनी प्रॉब्लम गाइज? सो देर आर broadly speaking two types, personal and impersonal. But when we go to micro level, impersonal accounts are further categorized into two further types, that is real and nominal. So in general we always say that there are three types of accounts: personal, real and nominal. Personal accounts are accounts of individual, firm, company or any organization. Real accounts are accounts of assets and properties. Nominal accounts are accounts of incomes and expenses. लिखो नीचे. Following are following are the golden rules of accounting. Following are the golden rules of accounting as per double entry bookkeeping system. As per double entry bookkeeping system. ट्रेडमार्क तूने बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा कि कुछ लिखा हुआ है नाम और उसके आगे टी एम लिखा हुआ रहता. टी एम, दैट इज ट्रेडमार्क. दैट मार्क, वो लोगो, वो नाम कोई और यूज नहीं कर सकता. जैसे बिस्लेरी है, बिस्लेरी ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. बिस्लेरी नाम से तुम्हारा पानी तुम ड्रिंकिंग वाटर बना के बेच नहीं सकते. कॉपीराइट लिखा हुआ कंटेंट के लिए रहता है. ट्रेडमार्क तुम्हारे लोगो या इसके लिए होता है. पेटेंट तुम्हारा कोई टेक्निकल नो हाउ बोल के भी एक वर्ड आता है, टेक्निकल नो हाउ. पेटेंट, टेक्निकल नो हाउ, कॉपीराइट्स, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स है. अभी जैसे अपन देखते कि इक्लेयर्स चॉकलेट की बात करें तो इक्लेयर्स चॉकलेट कैडबरी का प्रोडक्ट है, बराबर है, बट बहुत सारे डुप्लीकेट है. सिमिलर फॉन्ट में वगैरह लिखते हैं बट स्पेलिंग में माइनर चेंज करते हो जो नोटिस भी नहीं होता. बिस्लेरी पानी है, बिस्लेरी पानी के तो कितने डुप्लीकेट है बोल, तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है. हाँ, कितने सारे, कोई भी एग्जांपल ले लो, मिल जाता है डुप्लीकेट अपने को. बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने को समझ में भी नहीं आता ये ओरिजिनल है कि नहीं है. तो ट्रेडमार्क मतलब क्या है कि वो नाम तुम तुम्हारे नाम पे रजिस्टर करा लेते हो तो फिर वो दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता उसको. नो बडी एल्स कैन यूज इट. ऐसे लिखो. नॉमिनल अकाउंट, रॉयल्टी इज नॉमिनल. या तो इनकम है या तो एक्सपेंस है. पे कर रहे हो तो एक्सपेंस है, रॉयल्टी मिल रहा है आपको तो इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया. परचेसेस, सेल्स, नॉमिनल अकाउंट. अच्छा, तू साइंस बैकग्राउंड का है ना, इसलिए तेरे को आरसीसी नहीं है सब मालूम है. हाँ, कॉमर्स वालों को मालूम रहने का कारण नहीं, साइंस वालों में फेमस है वो नाम बहुत. मैं तभी सोचूं कि तू आरसीसी कैसे क्या बोल रहा. हाँ, रेड वाले दिन नांदेड़ में विनोद सर के रिलेशन में दूर से, मोटे गांवकर सर रेणापुर के है ना वो. विनोद सर रेणापुर के ओरिजिनली. तो आजू बाजू में घर है रेणापुर में, तो और दूर से रिलेशन है उनका कुछ तो. अच्छे दोस्त है उनके, बोल तो सर के, विनोद सर के, मोटे गांवकर सर. दोनों बड़े बड़े हस्ती है अपन गरीब लोग के. क्या हो गया? बोल बोल बोल. हम्म. बोलने जैसा जोक नहीं हुआ क्या? पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज द रूल गाइज? अब क्लास चालू के इतने दिन हो गए तो अब तुम इतने दिनों में ये तो समझ गए रहेंगे कि तुम्हारे चारों प्रोफेसर में सबसे सीधा साधा भोला भाला नाम की तरह सुशील एक ही है. नाम की तरह सुशील.
गरीब आदमी एक ही है भाई, बाकी तीनों बड़े हस्ती है। जे भी नहीं है साला, फैन कहाँ से लगाओ? काय का फैन बोला तू? बोल तो। हाँ, मेरे पास। अच्छा, प्रशांत सर ने बोला ना, उनकी भोली भाली शक्ल पे मत जाओ। सिर्फ शक्ल भोली भाली, बाकी कुछ भोला भाला नहीं है। अरे सब मजाक उड़ाते रहे मेरी, ये गरीब आदमी की, और कुछ नहीं। मेरे को तो मालूम ही नहीं ऐसा कुछ। क्या क्रॉस बोल तो क्या? अच्छा। A very famous brand actually, Cross. It is global brand, international brand है। और पुणे में आया था तब मैंने एक बहुत बड़े इंसान के जेब में वो पेन देखी थी। तो ड्रीम था कि भाई लाइफ में अपन अगर कुछ बन गए, सीए बनेंगे, खुद के कमाई से लेंगे। तो सीए बनने के बाद में खरीदा मैंने वो पेन। उसमें अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग वैरायटी है। गोल्डन प्लेटेड भी आता है, उसमें गोल्ड का प्लेटिंग होता है। पानी चढ़ाते हैं ना सोने का, तो वैसा गोल्ड का प्लेटिंग आता है। पहले उसका कॉस्ट 3,000 था। अब उसका कॉस्ट अराउंड अराउंड 6,500 रुपये है। वो मैंने खरीदा हुआ है। और फिर मेरे को एक गिफ्ट भी आया सिल्वर वाला। तो क्रॉस के पेन है। थोड़ा पेन का शौक है मेरे को। फॉर्मल शर्ट जिस दिन पहन के आऊंगा तो तुमको लगा हुआ दिख जाएगा वो पेन जेब में। रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं फर्स्ट लेक्चर में ये भी पूछना भूल गया था, आप में से कोई सेंट्रल बोर्ड का है क्या? सीबीएसई, आईसीएसई, या सारे स्टेट बोर्ड के हो आप? मतलब उसके बाद स्टेट था? नहीं नहीं, 10th तक की बात कर रहा हूँ मैं। आईसीएसई, सीबीएसई था 10th। 11th 12th लेकिन स्टेट बोर्ड था ना? 11th 12th में अगर सीबीएसई या आईसीएसई या कंटिन्यू किया ना, तो अकाउंट्स के कुछ टॉपिक है जो आगे आते हैं, वो पहले ही कवर हो जाते हैं 11th 12th में, जो स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है नहीं। अच्छा, तेरा था? कैश फ्लो वगैरह हो गया क्या फिर पहले? है ना? हुआ ना? हाँ, तो ये स्टेट बोर्ड में नहीं होता कैश फ्लो, स्टेट में। हाँ, सिखाया क्या? कैश फ्लो वैसे अभी नहीं है अपने सिलेबस में, इंटरमीडिएट में है, फाउंडेशन में नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये तीन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोले जाते हैं। और जो भी अकाउंटिंग होता है, बोल तो दुनिया में आप कहीं पे भी जाओ, एक तो डबल एंट्री फॉलो होता है, और डबल एंट्री की यही प्रिंसिपल्स हर जगह यूनिवर्सली फॉलो होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में है तो ये रूल्स हैं, यूएस में गए तो डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ 6 रूल्स है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 इफेक्ट होते डेबिट एंड क्रेडिट, कहीं और गए तो 4 इफेक्ट होते। यूनिवर्सल है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, हर जगह अकाउंटिंग जो है इसी सिस्टम से होता है। देयर इज नो अदर सिस्टम विच कैन बी बेटर देन दिस। सिंगल एंट्री भी है जो अपने सिलेबस का पार्ट है फाउंडेशन में, मैं बताऊंगा सिंगल एंट्री के बारे में बाद में जब उस टॉपिक में जाएंगे। बट सिंगल एंट्री इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। इट इज ऑलवेज एडवाइज यू गो फॉर
डबल एंट्री, और डबल एंट्री की ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है बोल रहा हूँ मैं। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को ले लो, यही रूल्स फॉलो होके उसके इफेक्ट्स दिए जाते हैं। अब हेडिंग लिखो लेजर, LEDGER, लेजर। राइट डाउन, under ledger, write down, ledger is one of the very important records. Ledger is one of the ledger is one of the very important records in which separate accounts are maintained, separate accounts are maintained for each accounting item, for each accounting item which gets affected, due to a business transaction, due to a business transaction। हम सब लोग बेटा ये सीखे हुए हैं पहले भी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की वजह से कोई ना कोई अकाउंटिंग आइटम पे इफेक्ट आता है। जैसे कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कैश पे इफेक्ट आएगा, अगर परचेस हो रहा है तो परचेसेस पे इफेक्ट आएगा, एक्सपेंस पे हो रहा है तो एक्सपेंस अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। तो जो जो अकाउंटिंग आइटम्स पे इफेक्ट्स आएंगे वो सबके सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन होते लेजर में। हम लेजर अकाउंट बोलते हैं, सारे लेजर अकाउंट मिला के जो रिकॉर्ड बनता है उसको लेजर बोलते हैं। पहले के ज़माने में कैसा था, जब टैली वैली नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो बुक्स मेंटेन होते थे। अगर आपको बाई चांस अगर याद है, पुराने मूवीज़ में अगर देखा रहेगा, या जिनके घर पे अभी भी दादाजी वगैरह है और वो हिसाब किताब वगैरह लिखते हैं, आपने देखा रहेगा कि रेड कलर के बुक्स रहते, दिवाली में पूजा भी करते उसकी, राइट। सो ये जो वही वही खाता बोलते, वही खाता। तो अपने पास बहुत महत्व है, दिवाली में तो पूजा करते हैं अपन उसकी, हिसाब किताब लिखने के लिए। तो उसमें ना ऐसे अलग अलग बुक्स होते थे, फिर जर्नल, फिर ये लेजर में जो बोल रहा हूँ, फिर वो लेजर बुक जो होता था, वो लेजर बुक में फिर सारे अकाउंट मेंटेन होते थे जिसको आप लेजर अकाउंट बोलते। तो सारे लेजर अकाउंट का मिला के जो रिकॉर्ड बनता है उसको बोलते लेजर। वो लेजर की हम बात कर रहे हैं। फुल स्टॉप, आगे कंटिन्यू करो। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, लेजर मेंटेन्स, in other words, ledger maintains separate record, separate record for each account, for each account, that is personal account, comma real account, as well as nominal account, full stop।
at the end of the accounting year, at the end of accounting year, all the ledger accounts, all the ledger accounts are balanced, are balanced, and the closing ledger balances, and the closing ledger balances are ascertained. Are ascertained. Full stop. The format of the format of a ledger account is as under. क्या फॉर्मेट है बेटा लेजर का? There are two sides and both the sides have identical columns. Date particulars JF, जर्नल में LF था लेजर फोलियो, और लेजर में रेफरेंस दिया जाता है जर्नल का, सो JF जर्नल फोलियो, फोलियो इज पेज नंबर. बनाया फॉर्मेट? तो लेट इट बी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कोई भी टाइप का अकाउंट रहने दो, परफेक्ट रिकॉर्ड इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट. लेजर के फॉर्म में उसका परफेक्ट समरी मेंटेन होता है, डेट वाइज भी और अकाउंट वाइज भी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स विच वी हैव एंड दैट इज लेजर अकाउंट. साल के एंड में सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं और उनका क्लोजिंग बैलेंस हम ढूंढते हैं. अब ये आई डोंट थिंक कि वो बताने की जरूरत है कि डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होता है. तो हम साल के एंड में सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज करेंगे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, और सारे अकाउंट्स क्लोज करके उनके क्लोजिंग बैलेंसेस ढूंढते हैं. सो एक तरीके से जब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होता है एंट्री का, पहले तो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में. जर्नल से जब हम उसका पोस्टिंग लेजर में करते हैं तो लेजर में जाते वक्त उसको रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट के रूल्स अप्लाई करके क्लासिफाई किए जैसा करते हैं और लेजर में एंट्री करते हैं.
So that's why I said recording is recording the transaction in journal. Classifying is posting the entry from journal to ledger, because when you post the entry from journal to ledger you classify it. अगर पर्सनल है तो अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट क्या करना है देखोगे, रियल है तो डेबिट या क्रेडिट का इफेक्ट उस हिसाब से आएगा जो 3 गोल्डन रूल्स लिखा के दिए. So classification part is completed through posting the entry from journal to ledger. After this, the next step is preparation of ट्रायल बैलेंस. लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस. लिखो. इट इज a summary statement it is a summary statement comprising of it is a summary statement comprising of closing balances of all the ledger accounts of all the ledger accounts as on a particular date. As on a particular date. Full stop. Usually full stop देखिए लिखो. Usually it is drawn as on the year ending date. Usually it is drawn as on the year ending date. Due to double entry bookkeeping system, the total of debit balances in a trial balance, the total of debit balances in a trial balance should be equal to the total of credit balances in the trial balance. Full stop. In other words, trial balance is a tallied statement full stop. The format of trial balance is as under.
नॉर्मली अपने को मालूम है कि ट्रायल बैलेंस हम ईयर एंडिंग डेट पे ही बनाते हैं नॉर्मली यूजुअली. डज दैट मीन ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर? नॉर्मली ईयर एंडिंग डेट पे बनाते हैं, बट इसका मतलब ये है क्या कि सिर्फ ईयर एंडिंग डेट पे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस कैन बी ड्रॉन एनी डे, किसी भी दिन का बना सकते हैं ना. उस दिन के क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस लेना है, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा. सो लगता अपने को ईयर एंडिंग डेट को है इसलिए हम बनाते ईयर एंडिंग डेट को है, बट किसी भी दिन का बन सकता है ना. इट कैन बी ड्रॉन एज ऑन एनी डे, राइट. और प्रैक्टिकली स्पीकिंग बेटा, अब तो इतने एडवांस सॉफ्टवेयर हो चुके हैं अकाउंटिंग के भी. ईआरपी जिसको बोलते हैं, ईआरपी आपने सुना रहेगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी सिस्टम्स. ये जो ईआरपी सिस्टम से बड़े बड़े लगे हुए हैं हर कंपनी में, रियल टाइम अकाउंटिंग होता है. रियल टाइम मतलब ट्रांजेक्शन होते ही अकाउंटिंग हो जाता है. तो डेली बेसिस पे रोज शाम का ट्रायल बैलेंस निकलता है, और रोज शाम का पी एंड एल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस. और उस दिन की प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है जो सेम डे पे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट की जाती है कंपनी के. ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, यहाँ पे डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग होता है इन चीज़ों का, डेली बेसिस पे. तो एकेडमिकली सीखते वक्त दिमाग में अपने यही है कि भाई यूजुअली वी ड्रॉ इट ऑन ईयर एंडिंग डेट, बट दैट इज नॉट द कंपल्शन कि ईयर एंडिंग डेट पे ही ड्रॉ करेंगे ट्रायल बैलेंस. किसी भी दिन का ड्रॉ हो सकता है, एनी एनी डे. क्या करना है उसको, उस दिन के क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस लेने बनाने का समरी स्टेटमेंट, और क्या. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज अ टैलीड स्टेटमेंट. डेबिट बैलेंसेस का टोटल में क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल टैली होना ही चाहिए, इसलिए कि तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है. एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज करस्पॉन्डिंग डेबिट. हर डेबिट का क्रेडिट है, हर क्रेडिट का डेबिट है. अगर आप 500 रुपए डेबिट करते हो तो आप 500 रुपए क्रेडिट भी करते ही हो. अगर आप 1000 रुपए क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1000 रुपए डेबिट इफेक्ट गया हुआ ही है. तो टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस शुड मैच विद टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस, एंड देयरफॉर जो स्टेटमेंट लिखा के दिया है, इट इज अ टैलीड स्टेटमेंट. इट इज अ टैलीड स्टेटमेंट. फॉर्मेट क्या है इसका? ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी डेट का है, सीरियल नंबर, अकाउंट हेड, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. सारे क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस आने वाले सारे. सो नंबर वन, नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स में दो पॉसिबिलिटीज है. इनकम्स, एक्सपेंसेस. इनकम्स, एक्सपेंसेस. मेरे को बताओ, अगर इनकम है तो विच बैलेंस दैट अकाउंट विल हैव? क्रेडिट बैलेंस. इनकम इज क्रेडिटेड ऑलवेज, सो इनकम अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट में कुछ बैलेंस आएगा. व्हाट अबाउट एक्सपेंसेस? अगर एक्सपेंसेस है तो
कंपल्सरीली डेबिट, एक्सपेंसेस में हमेशा डेबिट इफेक्ट जाता है, सो इट विल हैव डेबिट बैलेंसेस. रियल अकाउंट्स, कंपल्सरीली ऑलवेज रियल अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस. डेबिट ही रहेगा. अभी कैश अकाउंट इट कांट बी नेगेटिव, कैश नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो उसमें कभी क्रेडिट बैलेंस आएगा ही नहीं. कैश विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस. बिल्डिंग, हाउ इट कैन बी नेगेटिव बिल्डिंग. तो जितने भी रियल अकाउंट है सारे रियल अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस. पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स में कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं अपन. बैंक अकाउंट्स, बोथ पॉसिबिलिटीज, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस है, अगर ओवरड्रॉन है, ओवरड्राफ्ट है, तो नेगेटिव बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है. डेटस अकाउंट में कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट. डेटस में डेबिट रहेगा ना, पैसे आने होते हैं डेटस से, सो डेबिट बैलेंस. क्रेडिटर्स अकाउंट्स, क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट्स आर पेएबल, लाइबिलिटी है. कैपिटल अकाउंट, normally we see that there is credit balance only in capital. Don't get confused guys, drawings account is personal account. ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट होता है. आप बोलोगे ड्राइंग्स पर्सनल कैसे हुआ सर? मेरे बुक्स में अगर ड्राइंग्स अकाउंट बना है, दैट इज सुशील्स ड्राइंग्स. सुशील्स ड्राइंग्स बोल तो पर्सनल अकाउंट हो गया. डेबिट बैलेंस, ड्राइंग में डेबिट बैलेंस होता है. टोटल, next line. A tallied trial balance, a tallied trial balance acts as base for acts as base for preparation of financial statements, financial statements. हो गया, फुल स्टॉप, दैट्स इट. अपने को इस टॉपिक में यहीं तक पहुंचना था, ट्रायल बैलेंस तक. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स का अलग टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है अपने को जो सीखना है. इस टॉपिक में अपने को यहीं तक रिवाइज करना है. तो सबसे पहले हमने समझा कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर अकाउंटेड. बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल फर्स्ट,
then those are posted to ledger, and then on the basis of ledger it is summarized in the form of ट्रायल बैलेंस. जर्नल में कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश बुक, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग सब्सिडरी बुक्स, वहां से एंट्री पोस्ट होगी लेजर में, और लेजर से फिर समराइज होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. गॉट इट गाइज? 11th का रिवाइज हुआ? यस. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर फ्रेश टॉपिक, न्यू टॉपिक, कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपके साथ डिस्कस करने हैं. इसमें से कुछ टर्म्स आपने समझे हुए रहेंगे, सुने हुए रहेंगे, कुछ टर्म्स तुम्हारे लिए कंप्लीटली नए रहेंगे. तो सारे के सारे टर्म्स एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्यों तो बार बार इनका रेफरेंस आएगा. वी विल हैव रेफरेंस ऑफ ऑल दीज टर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट इज बेटर दैट यू हैव आइडिया ऑफ व्हाट दोज आर. वैसे तो लॉजिकली स्पीकिंग 11th में ये सारे सिखाना चाहिए, बट 11th में सिखाते ही नहीं अपने पास ये सारी चीज़ें. अकाउंट्स की शुरुआत ही इससे होनी चाहिए बता के, कोई बात नहीं, अब चलो अपन उसको तो ठीक नहीं कर सकते पीछे जाके, अब सीख लेते. अलग अलग टर्म जो यूज होते हैं, जिसमें से पहला है, यू मस्ट हैव हर्ड गोइंग कंसर्न. सुना है क्या? गोइंग कंसर्न. कैन somebody टेल मी व्हाट इज गोइंग कंसर्न? क्या रहता गोइंग कंसर्न? yes, going concern is the assumption of continuous life of the business. When I say that my business is a going concern, means if I say expert profession academy private limited is a going concern, इसका मतलब ये है we the owners of expert do not have any intention of closing down the business in near future. नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद करने का कोई हमारा प्लान नहीं है. तो आर बिजनेस इज गोइंग कंसर्न, बोल तो चलता रहने वाला हमारा बिजनेस है. इट इज द अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस. बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है, ये अजम्पशन जब हम करते हैं तो उसको बोलते गोइंग कंसर्न. मैंने आपको उस दिन पूछा था और आपने करेक्ट आंसर दिया भी था. हु ओन्स दिस बॉटल? मी. हु ओन्स द कैमरा? मी. तो दोनों भी मेरे लिए एसेट है. और दोनों में का फर्क क्या बताया था तुमने मेरे को उस दिन? कैमरा जो है वो फिक्स्ड एसेट है और ये करंट एसेट है. आपने कैमरा को फिक्स्ड एसेट क्यों बोला? व्हाई डिड यू कॉल इट एज फिक्स्ड एसेट? यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म. 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आप कैमरा यूज करने वाले हो, तो आप उसको बोलते हो फिक्स्ड एसेट है. अभी तुरंत आपको समझ में आएगा कि क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, बराबर लिंकिंग होगा. गोइंग कंसर्न के बगैर फिक्स्ड एसेट रहेगा क्या? फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या बोले आप अभी? आप जो लॉन्ग टर्म में यूज होने वाला है, तो लॉन्ग टर्म में यूज होने के लिए बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए ना. जस्ट अज्यूम करो, अजम्पशन है. ये आखिरी बैच है, ये मेरा आखिरी बैच है. मैंने आज डिक्लेयर कर दिया दैट दिस इज माय लास्ट बैच. अब इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं. फिर कैमरा मेरा फिक्स्ड एसेट है क्या? अब जब पढ़ाऊंगा ही नहीं तो कैमरा के सामने आके क्या नाचूं? व्हाट इज द यूज? आई मीन टू से कि जब मैं बोलता हूँ ये कैमरा फिक्स्ड एसेट है, इसका मतलब ये होता है कि माय अजम्पशन इज माय बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ longer period of time. So that assumption of continuous business is called as going concern. So going concern is the assumption of continuous life of the business. दाते काढो क्या? समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंसी क्या रहता? कंसिस्टेंसी का मीनिंग एक जैसा नहीं. कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार. हाँ, एक जैसा नहीं, लगातार. कंसिस्टेंसी का मतलब whichever accounting policies you have adopted for your business, you should follow those accounting policies consistently year after year. जैसे फॉर एग्जाम्पल से एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि अब हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक सीखेंगे आगे जाके. डेप्रिसिएशन में आपने तो 2 ही मेथड सीखे, SLM एंड WDB, बराबर ना? स्ट्रेट लाइन मेथड और
रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, दो मेथड तुमने सीखे हुए 11th में 12th में जब भी कहीं था डेप्रिसिएशन। मैं आपको बेटा 6 मेथड सिखाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू 6 मेथड्स बिकॉज 6 मेथड्स आर देयर इन आवर सिलेबस। अभी आप में से कितने लोग बिजनेस फैमिली से, घर पे बिजनेस है? ओके। अब जस्ट इमेजिन करो कि तुमने 6 मेथड मेरे से सीखे डेप्रिसिएशन के, और तुम घर पे जाके पापा को बोले पापा अब मैं सीख के आया हूँ, अब मैं सीए कर रहा हूँ, अब मैं बोलूंगा कैसे अकाउंटिंग करना और क्या है। और 6 मेथड सीखे ना, तो इस साल अपन एक काम करते, डब्ल्यूडीबी से डेप्रिसिएशन लेते, अगले साल स्ट्रेट लाइन मेथड से, उसके अगले साल एन्यूटी मेथड, उसके अगले साल सिंकिंग फंड मेथड, उसके अगले साल सम ऑफ द डिजिट्स मेथड, उसके अगले साल और कोई मेथड। चलता क्या ऐसे? ऐसे कैसे चलेगा? इलॉजिकल है ये। क्यों? तो आप एक साल एक मेथड, अगले साल दूसरा मेथड यूज करोगे तो 2 साल के प्रॉफिट कंपेरेबल रहेंगे क्या? प्रॉफिट कंपेरेबल तभी रहेंगे जब सेम मेथड फॉलो की हुई रहेगी प्रॉफिट असरटेनमेंट की। फॉर एनी कंपैरिजन द बेसिक रिक्वायरमेंट इज ceteris paribus। बाप रे, ये क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ ceteris paribus? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इकोनॉमिक्स में आता है ना रे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू। हुआ है कि नहीं अभी तक? फाउंडेशन में नहीं हुआ, वो 12th में था ना। अच्छा, साइंस के थे, कुछ भी सीखते साइंस में। कॉमर्स वालों कॉमर्स वालों ने तो सिखा रहेगा ना रे डीएमयू। When a consumer consumes more and more unit of a commodity, the utility or satisfaction derived by marginal units goes on decreasing. Ceteris paribus, other things being constant. तो कंसिस्टेंसी का मतलब ही ये है कि तुम्हारे पास अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज के चॉइस है, डजेंट मीन एवरी ईयर यू विल हैव अ सेपरेट पॉलिसी। हर साल अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपके बिजनेस के लिए कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करने हैं वो तुम्हारा चॉइस है, बट वंस यू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉलिसीज यू शुड फॉलो देम कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। सो वंस यू सिलेक्ट, लेट्स से जस्ट एक एग्जांपल के लिए, डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का डब्ल्यूडीवी मेथड तुमने चूज कर लिया तुम्हारे बिजनेस के लिए, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, फिर हर साल कंसिस्टेंटली डब्ल्यूडीवी फॉलो करो। एक बार अगर तुम डिसाइड कर लेते हो कि नहीं नहीं हमको एसएलएम फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फॉलो एसएलएम कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, देन ओनली द प्रॉफिटेबिलिटी विल बी कंपेरेबल। तभी तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी कंपेरेबल होगा, तुमको डिसीजन मेकिंग में भी आसानी रहेगी। सो कंसिस्टेंसी says whichever accounting policies you adopt for your business you should follow them regularly, consistently, year after year. Another one is accrual concept। क्या है accrual concept? Any idea? You're right। थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में रखते सिर्फ उसको समझाने के लिए। भावना फोन से ले आया, करेक्ट बोल रहा है तो जो बोल रहा है, बट उसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में रखना पड़ेगा। Accrual means incomes and expenses are accounted in the period to which those relate, और in the period in which they accrue। जिस पीरियड के लिए वो इनकम हुआ है उस पीरियड में उसको इनकम बोल के लेना चाहिए। जिस पीरियड का वो एक्सपेंडिचर है उस पीरियड में ही उसको एक्सपेंडिचर बोल के अकाउंट फॉर करना चाहिए। जरूरी है क्या जिस पीरियड का एक्सपेंडिचर है उसी पीरियड में पे होगा? जरूरी है क्या जिस पीरियड का इनकम है उसी पीरियड में वो इनकम मिलेगा ही? नहीं। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। टेलीफोन का बिल, अब ये एग्जांपल मैं हमेशा देता था लेकिन अब आउटडेटेड हो जाएगा वो। अब बहुत कम घरों में लैंडलाइन बचे हैं। कितने लोगों के घर पे लैंडलाइन है अभी भी? लैंडलाइन फोन आता था ना वो। हाँ, कितने लोगों के घर पे अभी भी? एक। बहुत कम होते जा रहे हैं।
मेरे भी पुराने घर पे था, मैं नए घर पे शिफ्ट हुआ तो मैंने लिया ही नहीं। अब हर फैमिली मेंबर के पास, बच्चे छोड़ के हर फैमिली मेंबर के पास मोबाइल है। तो क्या क्या, नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को 10th होने के बाद मोबाइल दिया, उसने भी मांगा नहीं, उसने भी मांगा नहीं, मैंने भी दिया नहीं। मे भी उसको मालूम था बाप खतरनाक है अपना, देगा नहीं। राइट नाउ ही इज इन 11th, तो उसको 11th में आने के बाद ही मोबाइल मिला। सो लैंडलाइन अब बहुत कम हो गए, तो चलो मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। चलो लेट्स से मोबाइल पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड। आई होप यू अंडरस्टैंड पोस्ट पेड एंड प्रीपेड का डिफरेंस। तो अब मेरे को बोलो, मोबाइल का पोस्ट पेड का बिल मार्च महीने का कब आता है? अप्रैल में। पोस्ट पेड है तो अप्रैल में ही आएगा ना। मार्च महीने का टेलीफोन मोबाइल का बिल आएगा कब? अप्रैल में। आप पे कब करोगे बिल आने के बाद? मे भी अप्रैल में या तो फिर मई में, जब भी है तो बाद में ही पे करोगे ना। अब ध्यान में लो कि लेट से मार्च महीने का मोबाइल का बिल आया अप्रैल में और आपने पे किया अप्रैल महीने में। सो व्हेन डिड यू पे इट? पे कब किया तुमने? अप्रैल में। बट मेरे को बताओ मोबाइल यूज कब हुआ? मार्च में। फिर एक्सपेंस कब का है? मार्च का है, एग्जैक्टली। एक्सपेंस कब का है? मार्च का। तो एक्रिवल कंसेप्ट बोलता है तुम पेमेंट भले ही अप्रैल में करो, वो खर्चा कब का है? मार्च का है, तो इट शुड बी अकाउंटेड एज एक्सपेंडिचर ऑफ मार्च। दैट्स द रीजन मार्च एंड को हम उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर बोल के दिखाते हैं कि एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बट इट इज नॉट येट पेड। अभी तक पे नहीं हुआ है बट फिर भी ये खर्चा हो गया है, तो ये खर्चा इसी महीने का है, भले ही तुम पे बाद में करो। कहते हैं लाइक फॉर एग्जांपल, ये जो क्लासरूम्स है सारे एक्सपर्ट के, दीज आर नॉट ओन्ड बाय एक्सपर्ट, दीज आर ओन्ड इंडिविजुअली बाय इट्स ओनर्स। सेकंड फ्लोर की जो प्रॉपर्टी है, समझो सेकंड फ्लोर के मेजर क्लासरूम्स मैंने ओन किए हुए, मैंने खुद ने खरीदे हुए हैं। फोर्थ फ्लोर की यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, इट इज ओन्ड बाय विनोद सर, विनोद सर। अब एक्सपर्ट हमको दोनों को भी रेंट देता है, एक्सपर्ट पेज रेंट टू बोथ ऑफ अस फॉर क्लासरूम्स यूज्ड बाय एक्सपर्ट। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आप बोलोगे सर एक्सपर्ट तो आपका ही है ना। एक्सपर्ट बिल्कुल हमारा है, बट आगे और एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे ये समझेगा आपको कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो एक्सपर्ट ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसको दो लोगों ने अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉपर्टीज रेंट पे दी है, हमको रेंट मिलता है। अब लेट्स से मार्च, जनवरी से लेके मार्च, इस क्वार्टर का रेंट, फॉर दिस क्वार्टर द रेंट इज पेड बाय एक्सपर्ट इन द मंथ ऑफ मे। मई में पे किया, 2 महीने लेट पे किया एक्सपर्ट ने हमको रेंट। अब मेरे को बताओ इस केस में हमको जो इनकम आया वो फिजिकली कब आया? एक्चुअल में मई महीने में, बट हमारी प्रॉपर्टी यूज कब हुई? जनवरी से मार्च में। तो वो जो रेंट रहेगा जनवरी से मार्च का इनकम रहेगा ना वो, इवन दो यू रिसीव्ड इट इन द मंथ ऑफ मे। सो accrual concept says incomes and expenses should be accounted in the period to which those relate and not in the period in which the expenditure is paid or in which the income is received। जिस पीरियड में इनकम मिला उस पीरियड का इनकम है जरूरी नहीं है, जिस पीरियड में एक्सपेंस पे हुआ उस पीरियड का एक्सपेंस है जरूरी नहीं है, जिस पीरियड के लिए वो है उस पीरियड का वो इनकम या एक्सपेंस बोल के अकाउंट फॉर होगा। दैट इज कॉल्ड एज एक्रूअल, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट। एंड गाइज कीप इन माइंड, तुमको मालूम रहना जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, अभी तो और कंसेप्ट सीखने अपने को, बट इन तीनों को, ये तीन जो है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, दिस थ्री आर नोन एज, ऐसे लिखना आप भी नोटबुक में, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। These three are known as fundamental accounting assumptions। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रीवल, तीनों भी समझे क्या है? once again, going concern means assumption of continuous life of the business, consistency means accounting policy should be followed consistently year after year, and accrual means incomes and expenses should be accounted
in the same period to which those relate and not necessarily in the period in which the income is received or expense is paid. जिस पीरियड के वो इनकम या खर्चे है उस पीरियड में उनका अकाउंटिंग होना चाहिए. बात है. नेक्स्ट टर्म, business entity concept. What is business entity concept? Yes, business and businessmen are separate from each other. मतलब expert and Sushil Bhandari are separate from each other. Expert and Vinod Reddy, they are separate from each other. Even though expert is owned by both of us. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं जब 11th स्टैंडर्ड में आया ना, मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि एकेडमिक्स मेरे बहुत भारी थे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे सीए में आने के बाद ही समझी. 11th 12th में भले ही बहुत अच्छे मार्क्स लेके मैं पास हुआ. अकाउंट्स में तो मुझे 99 थे 12th में. आई स्कोर्ड 99 मार्क्स अकाउंट्स में. नहीं नहीं, भारी कुछ भारी नहीं उसमें. 100 वाले बहुत थे, 100 वाले. मैं तुमको बताऊंगा तो तुम हंसोगे. मेरे घर पे आज भी बहुत हंसते मेरे को. मैं बताया ना आपको, मैं स्टेट टॉपर था 12th स्टैंडर्ड में. आई वॉज फर्स्ट इन महाराष्ट्र स्टेट. गाइज यू विल बी शॉक टू नो, मैं किसी भी सब्जेक्ट में टॉपर नहीं था. आई वॉज स्टेट टॉपर. महाराष्ट्र में फर्स्ट था मैं, बट मैं किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट नहीं था. हाँ, अरे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमको. अकाउंट्स में मुझे 99 थे. 100 वाले ढिगानी होती है आमच्याकडे, ढिगानी. इतने सारे बच्चे थे 100 वाले मेरे साथ के. 100 वाले. मैथ्स में 97 थे आउट ऑफ 100. तो 98 99 100 वाले बहुत थे मैथ्स में. मेरा सेकंड लैंग्वेज था रशियन. हाँ, लातूर में रशियन है सेकंड लैंग्वेज. रशियन 11 12 मेरा लातूर हुआ ना. मेरा नेटिव प्लेस ही लातूर है. तो रशियन था, तो इन रशियन आई स्कोर्ड 99 मार्क्स. और 100 वाले मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे. बहुत ज्यादा नहीं, अभी कुछ कुछ. अभी यार 25 साल पुरानी बात है. 99 में मैं 12th हुआ हूँ. सिर्फ मेरे को 2-3 सेंटेंसेस याद है. व्हाट इज योर नेम को बोलते हैं काक वाज जऊत. काक वाज जऊत. मिन्या जऊत सुशील. माय नेम इज सुशील. काक वाशा फमेलिया. व्हाट इज योर सर नेम? मया फमेलिया भंडारी. ऐसे ये कुछ कुछ याद रह गए. हाँ, क्या मालूम नहीं मेरे को. 99 थे. 100 वाले बहुत थे. इंग्लिश में 84 थे. बट इंग्लिश क्या है ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉमन पेपर आता है इंग्लिश लैंग्वेज का. तो 84 के आगे बहुत मिल जाएंगे अपने को. ओसी में कम ही थे मेरे को, 70-80 थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में. उसमें भी बहुत सारे बच्चे थे जिनको ज्यादा मार्क्स थे. इकोनॉमिक्स में लगा था कि मैं टॉपर हूँ, बट साला उसमें भी टॉपर नहीं था मैं. 89 थे मेरे को इको में आउट ऑफ 100. तो 92 का टॉपर निकला उसमें. वो तो एक भी सब्जेक्ट में मैं फर्स्ट नहीं हूँ, बट ओवरऑल स्कोर मेरा, एंड यू विल बी शॉक्ड, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक में 19 मार्क का फर्क था. वो तो जो सेकंड आया महाराष्ट्र में, उसकी टोटल मेरे से 19 मार्क से कम थी. वो तो गैप देखो कितना बड़ा है फर्स्ट एंड सेकंड रैंक में. बट एक भी सब्जेक्ट में फर्स्ट नहीं. तो इतना हंसते घर पे, तो कैसे टॉपर आए रे तू, एक भी सब्जेक्ट में फर्स्ट नहीं. मजे की बात ये, जितने भी प्राइजेस है सारे सब्जेक्ट टॉपर को है. ओवरऑल टॉपर को प्राइज ही नहीं था. तो साला बोलते ये तो कमाल हो गई यार. तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था ऐसे. अरे इसको क्या मतलब है यार, स्टेट टॉपर क्या भारी है ना ऐसा. बाहर के प्राइजेस बहुत मिले. 99 में मुझे 50,000 रुपए का कैश प्राइस मिला था उस जमाने में. उस टाइम के 50,000 बोल तो बहुत ज्यादा थे. अभी बोलूंगा तो आप बोलोगे क्या सर. फाउंडेशन की फीस मैंने जो पे की सीए फाउंडेशन की 4,000 रुपए, जबकि मेरे को प्राइस मिला था 50,000 रुपए का कैश प्राइस. 25 साल पहले था 4,000. उस कंपैरिजन में अभी कमी चे फीस. हाँ, अभी कितना बोले थे अपन 11 12th की फीस 2 लाख रुपए. हाँ, तो सीए तो भारी है ना रे. जोक्स अपार्ट, 11th में मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं है.
और मैंने पूछा भी नहीं मेरे टीचर से, मेरी भी गलती है ये, बोलता ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर गलत थे, मैंने भी पूछा नहीं कि क्या है। सीए में आने के बाद जब अकाउंट्स डिटेल में पढ़ने लग गया मैं एज अ स्टूडेंट, फिर मेरे को चीजें समझ में आई। जैसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में अपना खुद का दिया हुआ कैपिटल क्यों दिखाते, कैपिटल दिखाते ना हम लाइबिलिटी में। अभी मेरे को समझ में ही नहीं आता था 11th में, साला बिजनेस मेरा है, पैसा मैंने दिया, लाइबिलिटी कैसी हुई मेरी वो, मेरा पैसा है ना, मेरा बिजनेस है, लाइबिलिटी कैसी हुई वो मेरी। तब तक ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सीखा नहीं था ना, समझा नहीं था। जब सीए में आया तो समझा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है भाई तू अलग तेरा बिजनेस अलग, यू बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बैलेंस शीट तेरी नहीं बन रही, बैलेंस शीट बन रही बिजनेस की। तो बिजनेस ने तेरे से कैपिटल लिया हुआ है तो तेरे को वापस भी तो करना पड़ेगा ना। समझो मैंने मेरे बिजनेस में 50,000 रुपए का कैपिटल दिया है, 50,000 का, तो जब कभी बिजनेस बंद होगा तो वो 50,000 रुपए वापस लेने भी तो है ना बिजनेस में से। सो बिजनेस के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है। सो द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा। मेरे को बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कोई एक किराना शॉप ओनर है, ग्रोसरी शॉप ओनर है, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो, उसको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता समझो, वो उसके शॉप पे बैठा हुआ है और आप उसके बाजू में बैठे हुए, आप सीए कर रहे हो, आप होशियार बच्चे हो। अब वो जो शॉप ओनर है उसका बेटा आया, बेटा आया ना आया भागते हुए बोला पापा पापा आइसक्रीम खाना है दोस्तों के साथ में, पैसे दो। फिर पापा ने क्या किया, शॉप में बैठे थे, शॉप बॉक्स वो कैश बॉक्स में से 500 रुपए निकाले, बेटे को दिए, ले बेटा तू भी खा, बच्चों को भी खिला, तेरे दोस्तों को भी खिला, कीप द चेंज, रहा हुआ रख ले तेरे पास। चालू था ये, तुम बाजू में बैठे थे, तुमने वो अंकल को बोला, वो शॉप ओनर को, अरे अंकल ड्राइंग रिकॉर्ड करो ना ड्राइंग। उसने पूछा ड्राइंग मतलब, आपने बोला आपके कैपिटल में से कम करो। वो उखड़ गया, वो गुस्सा हो गया अंकल। वो बोले साला क्या बात कर रहा, बिजनेस मेरा, ये शॉप मेरा, ये शॉप में का कैश बॉक्स मेरा, ये कैश बॉक्स में का कैश मेरा, बच्चा मेरा, राइट, मेरे बिजनेस का मेरा कैश मैं मेरे बच्चे को दे रहा, तो मेरा कैपिटल कम करने वाला तू कौन। तो भाई मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूं, मुझे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सुशील सर ने सिखाया है, जो बोलता है आप और आपका बिजनेस अलग अलग है। बेटे ने आइसक्रीम खाना बिजनेस का खर्चा है क्या, नहीं है, ये पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चा है तो इसको ड्राइंग्स रिकॉर्ड करो। तो व्हाई डू वी रिकॉर्ड ड्राइंग्स, वी रिकॉर्ड ड्राइंग्स बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ऊपर से जा रहा कि दिमाग में जा रहा, पक्का, श्योर, हाँ। थोड़ा बोला करो रे, थोड़ा रिएक्शन दिया करो तो पढ़ाने वाले को भी मोटिवेशन आता है। समझा सबको, पक्का। ऐसे उदास बैठे चाय पीना है क्या, हाँ कल से पी के आया करो। छोटे बच्चे चाय नहीं पीते ना रे। नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट। व्हाट इज ड्यूअल एस्पेक्ट गाइस, यू रिमेंबर ड्यूअल एस्पेक्ट। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको ट्रायल बैलेंस के लिए, every debit has corresponding credit and every credit has corresponding debit, that is dual aspect, double entry, basically double entry, dual aspect is double entry. So under double entry what happens, every transaction is recorded by giving two effects, one debit another credit। तो जितने अमाउंट का डेबिट देते हैं उतने अमाउंट का क्रेडिट देते हैं, जितने अमाउंट का क्रेडिट दिया है उतने अमाउंट का डेबिट दिया हुआ रहता है। दैट्स द रीजन ट्रायल बैलेंस इज टैलीड, दैट्स द रीजन बैलेंस शीट इज टैलीड। तो उसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी का मतलब होता है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट। अभी मैं आपको बोलता हूं ये क्या है। आपने आपके बिजनेस के लिए जब अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफाइन करोगे, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप चूज करोगे आपके बिजनेस के लिए,
यू शुड चूज अकाउंटिंग पॉलिसीज इन सच मैनर कि तुम्हारे बिजनेस के मटेरियल ट्रांजैक्शंस कवर होने चाहिए, प्रॉपरली अकाउंट फॉर होने चाहिए। मटेरियल बोल तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, मेजर ट्रांजैक्शंस, वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर होने चाहिए, इसकी केयर तुमने तुम्हारे अकाउंटिंग में लेना चाहिए, उसको बोलते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट। अभी देखो बेटा, ये ना सब्जेक्टिव है मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंट क्या है ये तो सब्जेक्टिव है ना रे, ये तो पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा। जैसे कोई एक आधा स्टूडेंट रहता है, वो बोलता है कि नहीं यार आज अकाउंट्स का 2 घंटे का लेक्चर मिस हो गया, 2 घंटे मेरा मिस हो गया। वही दूसरा बच्चा एक आधा रहता है, वो बोलता है ठीक है ना यार, एक हफ्ता तो गया है। फर्क समझ के लो, एक आधे को लगता है कि एक हफ्ता तो गया है, क्या फर्क पड़ गया ऐसे एक हफ्ते से। कोई बोलता नहीं नहीं भाई एक दिन, बोल तो 2 घंटे गए, तो दोनों के लिए सिग्निफिकेंस अलग अलग हो गया ना। अभी वैसे ही है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा कि सिग्निफिकेंट या मटेरियलिटी क्या रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल से, कितने का आता है ये कैल्सी? 400 रुपए। रिलायंस कंपनी में कैल्सी गिर के फूट गया, रिलायंस कंपनी में कैल्सी गिर के फूट गया, विल दैट बी मटेरियल फॉर देम? लॉस तो लॉस है, बट विल दैट बी मटेरियल अमाउंट फॉर देम? रिलायंस के लिए मटेरियल अमाउंट है क्या? नहीं है, मटेरियल अमाउंट नहीं है, 400 रुपए का नुकसान है। और जिनकी बैलेंस शीट क्रोर्स में बन रही है, वो 400 रुपए का अलग से लॉस दिखाएंगे क्या? डस दैट मीन कि वो लॉस अकाउंट फॉर नहीं करेंगे? मैंने ऐसे नहीं बोला, सेपरेट दिखाएंगे क्या? नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंस में कहीं ना कहीं वो दिखा देंगे लॉस, लेकिन मैं बोला आपको पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। रिलायंस नहीं, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देता हूं, रियलिस्टिक एग्जांपल पे आते हैं। सुशील सर का कैल्सी गिर के फूट गया, नाउ इट बिकम्स मटेरियल। 400 रुपए का नुकसान हो गया सुशील सर का, राइट? गरीब आदमी के लिए 400 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। अरे अपना रे, सो पॉइंट इज, मेरे को समझाना इतना ही है कि मटेरियलिटी या सिग्निफिकेंट, इट डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है वो, ध्यान में आ रहा है? तो मटेरियलिटी कंसेप्ट का मतलब क्या है, तो आपने आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज इस तरीके से डिफाइन करने चाहिए कि ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शंस ऑफ योर बिजनेस आर अकाउंटेड प्रॉपरली। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। वी अकाउंट फॉर ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ। सिर्फ पैसे या पैसे का वर्थ जिसमें इन्वॉल्व है, वही ट्रांजैक्शंस का हम अकाउंटिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक्सपर्ट के ऑफिस में आए ना, आपने इंक्वायरी की कि फाउंडेशन की बैच कब से स्टार्ट हो रही, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई 6 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रही है। ये भी एक तरीके से एक ट्रांजैक्शन ही था, इन्फॉर्मेशन का लेन देन था। तुमको मालूम नहीं था, तुमने पूछा, तुमको रिस्पॉन्स मिला, तो डू यू अकाउंट फॉर दिस? इसका अकाउंटिंग आप करते क्या? नहीं करते ना, आप करेंगे ना हम करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि 6 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या किया? घर पे जाके बताया, आप नेक्स्ट डे कैश लेके आए या जो भी है चेक से पेमेंट किया, तुमने चेक लेके आए और तुमने एडमिशन ले लिया। अब जब तुम एडमिशन लेते हो, तो तुम भी अकाउंटिंग करोगे, मैं भी अकाउंटिंग करूंगा। क्यों? इट इन्वॉल्व्स money. So money measurement concept says only those transactions are accounted which involve money or money is worth. I'll give you a few more examples. Bank sanctioned your loan. बैंक ने तुमको लोन सैंक्शन किया, पे किया नहीं बोला मैंने, बैंक ने तुमको लोन सैंक्शन किया। विल यू पास द एंट्री फॉर लोन? लोन की एंट्री करोगे क्या तुम? अरे मिला थोड़ी है लोन, सैंक्शन हुआ है भाई, बैंक ने बोला हाँ हम तुमको लोन देंगे, दिया क्या? तो विल यू अकाउंट फॉर दैट? कब अकाउंटिंग करोगे आप? जब बैंक एक्चुअल डिसबर्स करेगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा तब। दिस इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था कि आई वेंट फॉर अ मूवी, मैं एक मूवी देखने गया, राइट? और मूवी देखने गया और वो मूवी में मैंने जाके इंक्वायरी की कि टिकट्स अवेलेबल है क्या, और रिस्पॉन्स आया कि हाँ टिकट्स अवेलेबल है। मैं इसकी एंट्री नहीं करता भाई, क्यों? तो इसमें पैसा इन्वॉल्व है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही मुझे सामने वाले ने बोला कि टिकट्स अवेलेबल है, मैंने पैसे दिए और टिकट खरीद लिए। पैसे दे दिए, टिकट खरीद लिए, अब इसका अकाउंटिंग होगा। क्यों? इट इन्वॉल्व्स मनी। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सेज you should always account for only those monetary transactions which involve money or money is
वर्थ। आपने किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया, समझो आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और आपने किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया, इसकी एंट्री करेंगे क्या जॉब से निकाल देना? नहीं, लेकिन जॉब से जब निकाला तो उसका फाइनल सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसका हिसाब किताब करके फाइनल अमाउंट उसको पे की, उसका एंट्री करेंगे। यस, उसका रीजन वापस वही सेम है, वी अकाउंट फॉर ओनली monetary transactions, so those transactions which involve money or money's worth are only accounted. जमते? टाइम और अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कंसेप्ट। टाइम ऑब्लिक अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कंसेप्ट। आप सबको आप सबको 11th में और 12th में ये टॉपिक कोई चॉइस में नहीं छोड़ता, और अगर ये ऑप्शन में छोड़ा है तो फिर आपका 11th 12th कोई काम का ही नहीं था। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक तो सबने सीखा है कि वो भी ऑप्शन था? नहीं, वो सीखते थे कंपल्सरीली अपन। मेरे को बताओ हर 12 महीने बाद हम क्यों बनाते फाइनल अकाउंट्स? दिस इज द रीजन, टाइम और अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या सिखाया आज मैंने आपको? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बोलता है योर बिजनेस हैज कंटिन्यूअस लाइफ। अब बिजनेस हैज कंटिन्यूअस लाइफ, डज दैट मीन कि फाइनल अकाउंट बनाओ इंच मत, अभी कंटिन्यू हो रहा है? समझना तो चाहिए, एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट, समझना तो पड़ेगा ना क्या कर रहे हैं। अच्छा, बिजनेस कर रहे, बिजनेस ये वर्ड यूज करता हूं मतलब इंटेंशन, अपना सपना, मनी मनी, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं ना। बिजनेस का मतलब ही वो होता है। अब तो भाई जिस इंटेंशन के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं वो इंटेंशन पूरा हो रहा है कि नहीं देखना भी तो पड़ेगा। जस्ट इमेजिन करो कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, पिछले 5-7 सालों से बिजनेस चल रहा है, लेकिन मैंने मेरा फाइनल अकाउंट ही नहीं बनाया, मुझे समझ में आएगा क्या मैं कितने पानी में हूं? हाउ विल आई कम टू नो वेयर डू आई स्टैंड फाइनेंशियली? फाइनेंशियली मेरी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियली मेरा परफॉर्मेंस क्या है, समझेगा क्या? ये तो मुझे टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे एक पर्टिकुलर पीरियड को डिफाइन करके उस पीरियड के लिए प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। दैट इज द रीजन द स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ 12 months, that is the period of 1 year, is considered for preparation of financial statements. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ये स्टैंडर्ड 1 साल का पीरियड माना गया है। तो हर 1 साल के बाद हम बुक्स क्लोज करते, लेजर्स क्लोज होते, लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस आते, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। हर 12 महीने के बाद ये प्रोसेस रिपीट होता है, दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग और टाइम पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलते हैं उसको। बोलते हैं ये सारे टर्म्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक अकाउंटिंग का स्टूडेंट होने के नाते ये सारी चीजें दिमाग में बैठानी जरूरी है, कहीं ना कहीं इसका लिंकिंग आपको ऑटोमेटिकली होते जाएगा जो पोर्शन अपन आगे सीखने वाले हैं। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। अपने फोर फादर्स ने, अपने पहले के जनरेशन्स ने अपने को दी हुई सीख है ये कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये सिर्फ अकाउंटिंग में आता है ऐसा नहीं, अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी हम ये फॉलो करते हैं। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस? कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका मतलब ये होता है यू शुड ऑलवेज मेक प्रोविजन टूवर्ड्स ऑल पॉसिबल लॉसेस। होने वाले लॉसेस की हमेशा प्रोविजन बनाए रखो, हमेशा तुम उसका प्रोविजन करके रखना चाहिए, कॉन्टिजेंसी के लिए यू शुड बी रेडी। हाँ, बट होने वाले प्रॉफिट्स जब तक होते नहीं तब तक उसको अकाउंट फॉर नहीं करना चाहिए। आपको एग्जांपल देता हूँ, आरडीडी। व्हाट इज आरडीडी? रिजर्व फॉर
बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अभी मेरे को बताओ ये एक्चुअल लॉस है क्या आरडीडी? होने वाले लॉस की प्रोविजन है, होने वाले लॉस की प्रोविजन है। तुम्हारे समझो डेटर्स 10 लाख रुपए के, वो तो 10 लाख रुपए तुमको आने हैं, लेकिन तुमको लगता है कि यार 5% तो इसमें का लॉस होगा, नहीं आएगा, बैड डेट्स हो सकते हैं 5%, वो तो 50,000 रुपए का लॉस एक्सपेक्टेड है। तो तुम बुक्स में प्रोविजन बनाते हैं ना आरडीडी की डेटर्स पे, तो दिस इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट? अभी आप लेट्स से दिसंबर महीने में आप, ठीक है, अभी फरवरी महीने में ऐसे एक्सपेक्टेड है कि तुम्हारे से कुछ खर्चा होना पड़ेगा, तुमको पहले से मालूम है फरवरी में खर्चा होगा, राइट? फरवरी में क्या खर्चा होने वाला है? हाँ, क्या 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 क्या? वैलेंट, नहीं रे, मैं फॉर्म भरना पड़ता फाउंडेशन का, एग्जाम का। देवा देवा देवा। चलो ठीक है, अब तू बोल रहा है तो वैलेंटाइन डे, हाँ तो मालूम है कि भाई खर्चा होने वाला है, पहले से प्रोविजन बनाई हुई बेटर है ना? पहले से, अरे मेरे को बताओ, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने हाथ में है, तो बेटर है ना कि पहले से प्रोविजन बना है। कितना खर्चा करने का प्लान है वैलेंटाइन डे पे? अब तो बोला तो बोलना, एक आधा गिफ्ट विफ्ट तो देना ही पड़ेगा, छोटा सा टेडी वेडी ऐसे एकदम, है ना? हाँ, फिर उस दिन खाना वाना खाने जाएंगे तो तू बिल देगा ना, उस दिन तो देना पड़ेगा, बाकी टाइम टीटीएमएम, तू तेरा मैं मेरा। हाँ, उस दिन कहीं घुमाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा, पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा होगा, तो लेट से एक अंदाजा 3,000 रुपए का खर्चा है गिफ्ट विफ्ट के साथ में, ठीक है? अभी स्टूडेंट लाइफ में अचानक सडनली 3,000 रुपए आते हैं क्या? नहीं। बट मुझे जब पता है पहले से, 3-4 महीने पहले से मेरी प्लानिंग है, अगस्त में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया तब से प्लानिंग हो गया था कि फरवरी आने वाला है, तो जब मुझे पहले से पता है तो हर महीने को थोड़ा थोड़ा सेविंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सो दैट फरवरी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अचानक फरवरी में तुम जाके किसी दोस्त को मांगोगे कि भाई पैसा चाहिए, भाई उसका भी तो वैलेंटाइन डे है ना, हर एक की प्रॉब्लम है, तो इट इज बेटर यू गेट प्रिपेयर्ड इन एडवांस। एग्जाम्पल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लॉजिक समझने की कोशिश करो कि क्या समझाना चाहता हूँ। अपने घर पे कई बार अपने पेरेंट्स के बीच में डिस्कशन हम सुनते हैं, जब नया घर लेना होता है या घर में आपके बड़े भैया बड़े दीदी उनकी शादी होने वाली है, तो पेरेंट्स के बीच में अपन डिस्कशन सुनते हैं कि भाई अभी थोड़ा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, बाजू में रखना पड़ेगा, शादी है घर में, खर्चा होने वाला है, सेविंग करते हैं ना अपन। दैट इज व्हाट प्रूडेंस इज, वही तो कंजर्वेटिज्म है। होने वाले एक्सपेंसेस का, होने वाले लॉसेस का यू शुड ऑलवेज मेक अ प्रोविजन, हमेशा तुमने तैयार रहना चाहिए उसके लिए। इतना ही नहीं, कॉन्टिजेंसी होने वाले ही नहीं, एक्सपेक्टेड भी है। कॉन्टिजेंसी बोल के आती क्या? कोई मेडिकेशन का खर्चा बोल के आता क्या? नहीं। अभी कोविड किसने सोचा था ऐसा होगा, राइट? बोल तो भयानक पीरियड अपन ने देख लिया अपने लाइफ में, भयानक बोल तो। अभी ठीक है, अपन जब कोविड से बाहर आ गए, बाहर आने के बाद आज अपन वापस रूटीन में लग गए, लेकिन कितने घर उजड़ गए वो पीरियड में। बोल तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग गए इसलिए, जिनके घर में कुछ हो गया, डेथ हुई, वो तो मतलब बर्दाश्त करने के बाहर का था। बट ऐसे भी फाइनेंशियली भी कितने सारे आज फैमिलीज के चैलेंजेस हो गए ना यार, काम चला गया, इतने दिनों तक इनकम नहीं, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आए। बट लेकिन जिन्होंने भी समझो अपने फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग करके रखी थी, तो उनको उतनी दिक्कत नहीं आई, कि तो वो उन्होंने प्रोविजन की हुई थी, उनके पास रिजर्व्स थे वैसे, तो दे कुड मैनेज इट। दैट इज व्हाट कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस इज। एट द सेम टाइम, जैसे होने वाले एक्सपेंसेस, होने वाले लॉसेस का प्रोविजन होना चाहिए, होने वाले प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजन होता है क्या? नहीं होता। मैंने आज सवेरे लॉटरी का टिकट खरीदा, समझो 10 करोड़ रुपए का लॉटरी का टिकट मैंने खरीदा, एंड अज्यूम कर रहा हूँ ये लॉटरी तो लगने वाली, मेरे को एक बाबा जी ने बोला है तेरे नसीब में, तेरे स्टार्स बहुत चमक रहे फिलहाल, ये लॉटरी का नंबर तेरा निकलेगा। ये बेसिस पे मैंने जाके फरारी कार बुक कर दी। तुमको लॉजिकल लगता क्या ये? ऐसे होता क्या कभी? भाई होने वाले प्रॉफिट के बेसिस पे हम कभी भी कोई चीज प्लान नहीं करते, उसका कभी भी अकाउंटिंग करते नहीं। इनकम जब होगा तभी उसको इनकम बोल के लो। हाँ, एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड है ना, उसकी प्रोविजन पहले से करो। दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जेपते पक्का? वन मोर।
सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसका अकाउंटिंग एग्जांपल भी देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा समझने में मुश्किल जाता है, इसलिए थोड़ा जनरल एग्जांपल पहले देता हूँ। भाई अभी वैलेंटाइन डे का नाम लिया ही है। व्हाट इज योर गुड नेम? NEO। Oh, so unique name. Very nice. Any specific reason for such name? Oh, अच्छा। क्या बात है यार। hey, वेरी यूनिक नेम, वेरी नाइस नेम है नियो। मैं पहली बार ही सुना हूँ। तो मेरे को वर्ड मालूम है, नाम मालूम है। मेरे सामने कोई इस नाम का पहली बार आया है, ऐसे बोल रहा हूँ। नियो। गुड। मेरी बेटी 2013 में हुई। हाँ। तो बेटा जब हुआ 2007 में, तो नाम मैंने रखा था अमर्त्य। उसका रीजन था कि अमर्त्य के दादाजी ने, मतलब मेरे पापा ने, ही टॉट इकोनॉमिक्स फॉर 38 ईयर्स। और अमर्त्य सेन का नाम सुना है आपने? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला हुआ है उनको, इंडियन ओरिजिन के। अमर्त्य सेन, तो पापा ने अमर्त्य सेन के ऊपर एक बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंट किया था, जिसका बहुत जगह पे अप्रिसिएशन हुआ, और पापा को बहुत सारी जगह बुलाया गया वो पेपर के लिए। तो मेरे दिमाग में था कि भाई अपनी शादी होएगी, अगर बेटा हुआ तो नाम अमर्त्य रखेंगे। तो शादी हुई, बेटा भी हुआ, तो मैंने अमर्त्य नाम रख दिया। जब सेकंड चाइल्ड की बारी थी, तो होम मिनिस्टर ने पहले ही बोला था, पहले बच्चे का नाम आपने रखा है, अभी जो भी होगा आई डिसाइड द नेम। कोई ऑप्शन नहीं रहता, हाँ ही बोलना पड़ता। तो 2013 में आशिकी 2 आई थी। हाँ, आरोही। श्रद्धा कपूर का नाम आरोही था ना उसमें। हाँ, तो बेटी का नाम आरोही है। तो जैसे तू बोला मूवी के ऊपर, जोकिंग सेंस में लेते अपन इस बात को, लेकिन कई बार कैसे नाम देखो ये होते हैं। मेरी बिल्डिंग में ना बेटा, टोटल 24 फ्लैट है मेरी बिल्डिंग में। सोसाइटी तो बहुत बड़ी है, बट मेरे बिल्डिंग में 24 में 5 अमित है। 5 लोगों के नाम अमित है। तो इन जनरल जब हम मिले सब लोग, तो कई बार डिस्कस, साला 5 अमित एक साथ आ गए यार। तो जो एज ग्रुप है इन लोगों का, वो उस पीरियड का है जब अमिताभ वॉज ऑन टॉप। अमिताभ वॉज ऑन टॉप। अमिताभ तो आज भी टॉप पे है, लेकिन एक फेज था कि अमिताभ का इतना नाम हुआ था, कोई भी मूवी अमिताभ, तो जितने बच्चे तब पैदा हो रहे थे, मेजोरिटी लोगों के नाम थे अमित अमित अमित। अमिताभ नहीं, अमित। अमिताभ बहुत बड़ा हो जाता है, अमित। आज के 10-12 साल पहले आई रिमेम्बर, मेरे बैच में आउट ऑफ सम 400-500 स्टूडेंट्स, 19 ऐश्वर्या थी। 19 ऐश्वर्या नाम की लड़कियां थी। ऐश्वर्या बोलता था कि सब देखते थे, इतने सारे लोग। 19 लड़कियां थी। तो फिर मेरे को पहले ध्यान में नहीं आया इतने कैसे क्या हो गए एक साथ ऐश्वर्या। फिर जब निकाला तो वो बैच का बर्थ ईयर, वो बैच के बच्चों का 1993 था। एंड ऐश्वर्या राय वाज क्राउंड एज मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, जो भी थी वो। तो उस साल जितनी भी लड़कियां हुई, मेजोरिटी ऐश्वर्या थी। तो नियो, गुड नेम। याद रह जाएगा, और याद भी रह जाएगा, नाम एकदम यूनिक है। नियो वैलेंटाइन डे का प्लानिंग कर रहा था थोड़ी देर पहले है ना। अभी तेरा नाम ओम। ओम ना। हाँ, ओम मेरे को आके बोला, अरे सर वो वैलेंटाइन डे का प्लानिंग और एकदम सच्ची है सर, और नियो का चक्कर चल रहा है सर। ठीक है, मैं बोला नहीं रे ओम, चक्कर वक्कर नहीं चल रहा। अरे बोले नहीं सर, आपको नहीं पता सर, दोनों एक दो साथ में घूमते भी है सर। बोला "अरे साथ में घूमने से ऐसे कंक्लूजन पे थोड़ी आते हैं यार कि चक्कर चल रहा है, ठीक है ना, दो बेस्ट फ्रेंड्स भी तो घूम सकते हैं ना एक दूसरे के साथ में। राइट। बोला, ओम बोला नहीं सर, दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए सर, स्टिल आई वोंट एग्री कि कुछ चक्कर चल रहा है। यू नीड टू गो टू द सब्सटेंस। सब्सटेंस बोल तो बेस में जाके देखो कि क्या है। तुमको ये देखना पड़ेगा कि गिफ्ट कौन से दिन दिए। वॉज इट वैलेंटाइंस डे और रक्षाबंधन? इफ इट वॉज रक्षाबंधन, भैया दीदी ये दोनों, है ना। अब तुम तो यार कुछ भी बोल रहे हो, साथ में घूम रहे नहीं है, भैया दीदी घूम नहीं सकते क्या? नहीं, वो बोलेगा साला मैं इतना खुश हुआ था थोड़ी देर पहले, रक्षाबंधन बना दिए। हाँ। नियो के लिए एक शायरी याद आ गई है ये किस्से पे।
वो छमछम करती आई, वो छमछम करती चली गई, वो छमछम करती आई, वो छमछम करती चली गई, मैं सिंदूर लेके खड़ा था, वो राखी बांध के चली गई। ऐसा ना हो, भगवान करे लाइफ में तेरे साथ। जोक्स अपार्ट, सब्सटेंस और फॉर्म का मतलब क्या है आप ध्यान में लो। अपन ये जोकिंग पार्ट थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये था कि तुम सब्सटेंस में जाके देखो कि क्या हो रहा है। तुम डायरेक्टली कंक्लूजन पे आओगे ना, तो हो सकता है वो कंक्लूजन गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अज्यूम करो कि मैंने बीएमडब्ल्यू कार खरीदी। अज्यूम करो, राइट, कि मैंने बीएमडब्ल्यू कार खरीदी, और मैंने बीएमडब्ल्यू कार जो खरीदी वो हायर परचेस पे खरीदी। यू अंडरस्टैंड हायर परचेस? हायर परचेस बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पे खरीदा। वो तो उसका पेमेंट जो है मैं हर महीने को ईएमआई में देने वाला हूँ। तो अगले 5 साल तक मैं ईएमआई पे करने वाला हूँ। बेटा आप हायर परचेस, ये इसको हायर परचेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सीखोगे तुम ये। हायर परचेस का रूल ये है, यू बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स ओनली आफ्टर यू पे लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो तुम ओनर बनते हो उसके। व्हेन यू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। बोल तो मैं ओनर कब बनने वाला हूँ उस गाड़ी का? 5 साल बाद बनने वाला हूँ। I'm going to become owner after 5 years because I'll be paying the installment for 5 years. So when I pay the last installment, then I become the owner. बट अभी देखो, लीगली ओनर मैं 5 साल बाद बनने वाला हूं, बट आज मैं गाड़ी लेके आ गया, यूज कौन करने वाला? मैं। यूज तो मैं ही करने वाला हूं ना। गाड़ी मैंने खरीदी है हायर परचेस पे। लीगली ओनर कब बनूंगा मैं? 5 साल बाद। लेकिन ये 5 साल में गाड़ी यूज कौन करने वाला है? मैं। सारे रिस्क एंड रिवार्ड्स किसके? मेरे ही है। तो गाड़ी का यूज जो भी है मैं ही करूंगा। कुछ एक्सीडेंट भी हुआ तो कौन बेयर करेगा? मैं ही करूंगा। तो इन शॉर्ट, इन सब्सटेंस आई हैव बिकम द ओनर, बट लीगली एम आई द ओनर? लीगली मैं ओनर हूं क्या? नहीं, बट इन सब्सटेंस आई हैव बिकम द ओनर। गाइस, अकाउंटिंग बोलता है भले ही तुम लीगल ओनर नहीं हो उस गाड़ी के, आज तुम्हारे बुक्स में तुम वो कार को अकाउंट करो, अकाउंट फॉर करो। आई विल शो दैट कार एज माई एसेट इन माई बैलेंस शीट। जबकि लीगली मेरे पास उसकी ओनरशिप है क्या? नहीं है। दॅट इज व्हॉट सबस्टन्स ओव्हर फॉर्म. मराठीत बोलायचं झालं तर दिसतं तसं नसतं. बेस मध्ये जा आणि बघा काय है. साथ में घूम रहे बोल के नियमों को जबरदस्ती तुम छेड़ो मत. सब्सटेंस में जाके समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्या है. राइट? ओम ऐसा नहीं रहता. सो सब्सटेंस ओवर फॉर्म. इज दिस क्लियर? तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, चलो चलो चलो, मजाक का पार्ट अलग रह गया. बोलने का, समझाने का रीजन, मतलब ये था, जब भी हम कभी अकाउंटिंग करते हैं तो ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस में जाके उसको अकाउंट फॉर करो. सिर्फ दिख रहा है रादर ऐसे ही जनरल तुमको ट्रांजैक्शन देख के जो इंटरप्रेट हो रहा है उस बेसिस पे अकाउंटिंग मत करो. गो टू द सब्सटेंस एंड देन डिसाइड हाउ टू अकाउंट फॉर इट. जाता है डोक्यात? पक्का? अभी और 2 कंसेप्ट है. टाइम खत्म हो गया वैसे अपना. कोई बात नहीं, वो 2 कंसेप्ट मैं आपको शॉर्ट में नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ. एंड दिस टॉपिक इज ओवर. नाउ वी आर मीटिंग ऑन सैटरडे. एज आई सेड, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो आई एम आउट ऑफ पुणे. मैं नहीं हूँ, बाकी प्रोफेसर्स लेक्चर लेंगे सैटरडे. Unless there is some change, the lecture timing will be 10 to 1, and after that we will take lunch break and again we will meet. Otherwise 10 to 1 तो है ही अपना लेक्चर. अगर कुछ चेंज रहा तो मैं ग्रुप पे मैसेज करूंगा. अगर चेंज नहीं है तो मैं मैसेज करूंगा नहीं. बराबर सैटरडे के दिन सवेरे 10 बजे आ जाना. डोंट मिस द लेक्चर. पिछले सैटरडे को कुछ लोग गायब थे तुम्हारे में से. ऐसा मत करो. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. सो कमिंग सैटरडे वी विल बी स्टार्टिंग विद BRS लेक्चर मॉर्निंग 10 o'clock. थैंक यू गाइज. बाय बाय.